सोनल पोखरना नहर और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, फिलहाल हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th अकाउंटेंसी का रिवीजन सीरीज। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ इन दोनों चैप्टर्स को साथ में रिवाइज करेंगे बिकॉज दोनों चैप्टर्स के फंडामेंटल्स और अकाउंटिंग एंट्रीज सेम है। सो लेट्स बिगिन। रिटायरमेंट एंड डेथ ये भी रिकंस्टिट्यूशन ही कहलाए जाते हैं बिकॉज इन बोथ द केसेस कोई पार्टनर फर्म के बाहर जा रहा है लीडिंग टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। In case of retirement of partner, a partner voluntarily leaves the firm. जी हाँ, यहाँ पे पार्टनर voluntarily that means खुद की इच्छा से फर्म को छोड़ के बाहर जाने वाला है। It is called as retirement of partner. Generally, some causes of retirement are old age, health issues, mutual consent of other partners or all the partners, any personal reason और will of a partner. That means पार्टनर अपने खुद के इच्छा से फर्म को छोड़ना चाहता है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो बचे हुए पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर द रिटायरमेंट इज कंपल्सरी। कोई पार्टनर की डेथ होने की वजह से वो फर्म से बाहर हो रहा है, सो इट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो एक बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, रिटायरमेंट प्लान्ड होता है, डेथ सडन होता है। और इसीलिए इन केस ऑफ डेथ जब तक वो पार्टनर फर्म में था तब तक का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ। अब हम लोग बढ़ेंगे टू द एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of retirement as well as death of a partner. First concept is gaining ratio or benefit ratio. In case of retirement or death, एक पार्टनर बिजनेस के बाहर चले जाने की वजह से उसके हिस्से का प्रॉफिट now will be distributed between the remaining partners. Of course, अगर remaining partners में distribute हो रहा है तो they will get additional profit. So the ratio in which remaining partners receives benefit due to retirement is called as gaining ratio or benefit ratio. The formula of gaining ratio or gain ratio is new ratio minus old ratio. Old ratio generally question में given होता है। अब एक सवाल, मैम न्यू रेशियो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स है A, B and C sharing their profits in 2:2:1. For example, C retires or dies. तो फिर जो दोनों पार्टनर्स बच गए A and B, उनका रेशियो 2:2 that is equal will be considered as new ratio. यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेशन का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। The old ratio of remaining partners will be considered as new ratio. तो गेन रेशियो जो है इट इज ऑलवेज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। सो लेट अस मूव टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Goodwill is the reputation or capacity of earning profits in future of a particular firm. In case of retirement and death, ये जो goodwill है it is earned by all the partners, that means including retiring or deceased partner. Naturally, the retiring or deceased partner will have the right on the goodwill. So, जो retiring और deceased partner है उसको उसके हिस्से का goodwill देना पड़ेगा। और वो goodwill कौन देगा? तो वो goodwill remaining partners देंगे because they will enjoy the same goodwill in new firm or reconstituted firm in future. So accounting treatment of goodwill, retiring partner या deceased partner का share will be credited to their respective column in partner's capital credit side and it will be debited to partner's capital account of remaining partners in their gaining ratio.
यहाँ गेन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेबिट ऑफ remaining partners capital account in their gain ratio. That was all about goodwill. Generally standard 12th level पर आपको goodwill calculation वगैरह रिटायरमेंट या डेथ में नहीं दिया जाता. Next is revaluation of assets and liabilities. ये revaluation के effects are generally same as we do it in admission of a partner. If there is increase in asset, add to that particular asset in asset side of balance sheet and revaluation credit side. On the other hand, if there is decrease in asset, minus from that particular asset and revaluation debit. On the other hand, if there is increase in liability, add to that particular liability in liability side of balance sheet and revaluation debit. Also, if there is decrease in liability, then minus from that particular liability and revaluation credit side. Revaluation का profit या loss will be distributed among all the partners. Yes, all the partners, including deceased or retiring partner, in the partner's capital account in their old profit sharing ratio. Next is accumulated profits or losses. Again, if liability side of balance sheet shows accumulated profit like general reserve, then partners capital credit all partners old ratio. कभी कभार आपको एडजस्टमेंट में ऐसा कहा जाता है कि मेंटेन जनरल रिजर्व ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या जनरल रिजर्व इज टू बी गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर ओनली. इन सच केस आपको सिर्फ रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है यूजिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर के कॉलम में दिखा देना है और बचा हुआ जनरल रिजर्व यू हैव टू कंटिन्यू इन योर बैलेंस शीट. If you have profit and loss in the asset side of the balance sheet, then distribute it in partners capital debit side, all partners old ratio. This adjustment of accumulated profit and loss is compulsory because जो बाहर जा रहा है वो उसके हक की हर चीज लेके बाहर जाएगा. नेक्स्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. काफी बार आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि द रिमेनिंग पार्टनर शुड मेंटेन देयर कैपिटल एट अ सर्टेन अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि रिमेनिंग पार्टनर्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एट ₹2 lakhs और उनका न्यू रेशियो है इक्वल. देन दोनों का जो बैलेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज ₹1 lakh ईच, जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा. एंड द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश. अगर कैश कम पड़ रही है तो रिमेनिंग पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे, अगर एक्सेस है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को पैसा पे कर दिया जाएगा. नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. अब सारे एडजस्टमेंट्स के बाद में रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा दे देना है, लौटाना है, सेटल करना है. तो रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कौन सा एंगल से किया जा सकता है? वन इज थ्रू कैश. इसके इफेक्ट्स आप दे दोगे. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू कैश रिटायरिंग पार्टनर्स कॉलम एंड असेट साइड कैश में से माइनस. या इट कैन बी मेंटेन्ड एज लोन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर. So effects, partners capital debit again and liability side of balance sheet by the name of retiring partners loan. In case of retirement, जो retiring partner है उसे क्या क्या मिलेगा? तो his capital balance, his share of goodwill, his share of reserves, his share of revaluation profit minus the drawings he did from the firm. अब हम बात करेंगे डेथ की. रिटायरिंग पार्टनर के बारे में हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए उसी के साथ साथ डिसीज्ड पार्टनर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है विच इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है तो रिटायरमेंट में भी ये शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होगा.
बट डेथ के क्वेश्चन में ये जरूर दिया ही जाता है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, जिस दिन उस पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक का एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया होगा, out of profit of the previous year or average of last 2 years, 4 years, whatever it may be। तो उस पर्टिकुलर पीरियड का, फॉर एग्जाम्पल if the partner died on 1st of July, then you will calculate the average profit for 3 months, that is April to June। फिर ये जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से यूजिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे और वो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर दिखा दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट उस पर्टिकुलर पार्टनर के कॉलम में एंड असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट्स है तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है तो उसके अगेंस्ट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्ट किए जाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज्ड पार्टनर का जो सेटलमेंट है वो आइदर कैश में कर दिया जाएगा और थ्रू बैंक इफेक्ट्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट एंड माइनस फ्रॉम कैश और बैंक। Otherwise, it will be kept in firm by the name of deceased partners executors loan। Executor means legal heir जो उस deceased partner को represent करने वाला है। तो firm will pay executor the amount due to deceased partner। So friends, ये दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है लेकिन अकाउंटिंग वाइज दीज चैप्टर्स आर मेजरली सेम, तो आप इन्हें हैंड इन हैंड पैरेलली भी रिवाइज कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे दे फॉरगेट गेनिंग रेशियो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल। इन केस ऑफ डेथ टिल डेट का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स टेंड टू यूज रॉन्ग रेशियोज and they forget to write executor's loan। In case of death, students directly deceased partner का लोन दिखा देते हैं जो टेक्निकली गलत है जिससे आप मार्क्स लूज कर सकते हो। तो इन छोटे छोटे एक्सीडेंट स्पॉट्स का ध्यान रखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स सिक्योर करते आए। तो आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप अगर याद रखो तो चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे। पहला, retirement and death are also the reconstitution। Adjustment of goodwill is compulsory। In case of adjustment of goodwill, gaining ratio is used। Reserves and revaluation both are shared by all the partners in old profit sharing ratio। And in case of death, you have to calculate the share of profit till death of that particular partner। So this completes your revision of retirement of partner and death of partner। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मैं जल्द ही वापस आऊंगी अगला रिवीजन वीडियो लेकर। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी स्टडीइंग।